Hello everyone. In this video we will see the integration, indefinite integration of this particular variety. What is that variety? Is that integration of the type px plus q divided by ax square plus bx plus c. As you can see that this is linear, and this is quadratic, correct? This is quadratic and this is also linear and this is quadratic under square root sign, correct? So these are the two varieties we have to integrate. Okay, so for this what we have to substitute? We have to substitute px plus q equal to a into ddx of this quadratic ax square plus bx plus c and plus b. So these substitution we have to make over here, whether this is the question of this kind or this kind, correct? Px plus q, that is linear by quadratic, quadratic under square root sign, or linear by quadratic. So here we will use this kind of substitution, that put linear px plus q equal to a into derivative of, like that this become now px plus q, a into derivative करेंगे तो 2ax plus का b plus का b, and now you can compare left hand side and right hand side, x का coefficient and then constant, and you will get the value of a and b, and then you can solve this integration. How? See, when I divide this px plus q by ax square प्लस का bx प्लस c, तो यहाँ पे भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा. यहाँ डिवाइड करते ही मेरे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे. यहाँ डिवाइड करते ही मेरे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि आपके 6 लेवल इंटीग्रेशन है या इसके पहले जो भी इंटीग्रेशन आपने जाना है वो सारे इंटीग्रेशन में ये कन्वर्ट हो जाएंगे. So this is quite interesting and quite easy. That is linear by quadratic or linear by quadratic under square root sign. Let's do some problems now. Look at this first question. This is linear by quadratic and quadratic under square root sign. And important point is that whatever be the quadratic we will see over here, those quadratic cannot be factorized. Okay. So the process to solve this is put 3x plus 1 equal to a into ddx of x square plus 4x plus ka 1 plus ka b. So therefore this is 3x plus 1 equal to a into derivative करेंगे तो 2x plus का 4 plus का b. Now I can compare x का coefficient here 3, x का coefficient here 2a. Okay, this one is, therefore a is equal to 3 by 2. That's it. Now I can compare constant. 1 is equal to here 4a and here plus b. So b is equal to 1 minus 4a, 1 minus 4 into 3 by 2, 2 से 2 कटेगा, 3 to the 6, that is equal to minus 5. करेक्ट है यहाँ तक के? तो I can find out a and b in that way only. Correct? So therefore I can write this as a 3x plus 1. 3x plus 1. a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 3 by 2. Okay, 2x plus 4 and b का वैल्यू है minus 5. I want the integration of this 3x plus 1 divided by this one. So therefore divide 3x, I can divide over here only. This is x square plus का 4x plus 1. Okay, and this is equal to x square plus का 4x plus 1, and this is square root of x square plus का 4x plus का 1. Now I can integrate. Okay, integrate both sides. ये हो गया इंटीग्रेशन. करेक्ट है? तो ये तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बन जाएगा. दिस आई कैन सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, द लास्ट लेक्चर concept only. And this is, you can see that the derivative differentiation of x square plus 4x is 2x plus 4. So I can substitute this x square plus 4x plus 1 equal to 2. So therefore this is converted into the dt. So I have the integration of 1 upon root t dt. Okay, that is t की power minus 1 by 2. So this is 2 root t हो जाता है. Correct है? 2 root t. So that integration is also over. So therefore now I have come to the already known type of integration.
So this is what, first one is 3/2, this is 2 into root of x square प्लस का 4x प्लस का 1, करेक्ट. इसका इंटीग्रेशन दिस इज व्हाट 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का रूट. वाई बिकॉज पुट किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 को t, तो ये 2x प्लस 4 ये dx, ये काय में कन्वर्ट हो जाता है, dt में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट है. तो हमारे पास में इंटीग्रेशन 1/√t/dt होता है और जो कि 2√t होता है, करेक्ट. बस वही काम कर दिया, डायरेक्ट हो गया. ये अपने को याद होना चाहिए, ये याद होएगा तो फटाक से हो जाएगा. तो ये तो कैंसिल आउट हो गया. अब इधर में आते -5 बाहर निकाला. अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करेंगे. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, तो +4 होना चाहिए, तो -4 भी होना चाहिए और पहले से ही +1 होना. तो ये तो हो जाएगा 3 टाइम्स रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 1 -5. अभी ये क्या होगा, ये हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वेयर, करेक्ट. और ये हो जाएगा -√3 का होल स्क्वेयर, करेक्ट. -3 बचेगा ना. तो ये स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आ गया. dx अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का आपका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए. तो यहाँ पे आ गया 3x स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 1 माइनस का 5. और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए. इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस का ए स्क्वेयर. बस यही फार्मूले को यहाँ यूज़ कर दो. तो ये हो जाएगा -5 और लॉग ऑफ एक्स प्लस 2, यहाँ एक्स प्लस 2 है, करेक्ट. एक्स प्लस 2 और प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ ये पूरा एक्सप्रेशन, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन, करेक्ट है. एक्स स्क्वेयर प्लस का 4x प्लस का 1. तो ये आपका, और आपको प्लस सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके, ये वाली वेराइटी वैसे जनरली नॉर्मली बोर्ड्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है. बोर्ड्स में डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड्स के हो, CBSE बोर्ड के हो, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड्स के हो. नॉर्मली यू विल सी द प्रॉब्लम्स ऑन दिस पर्टिकुलर वैरायटी. बट जेई में भी क्वेश्चन आते हैं इसके, करेक्ट. तो क्या है ये, लीनियर बाई सिंपली क्वाड्रेटिक. तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं हम, पुट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू a इंटू डी डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 3 एंड प्लस का b. a और b को हमको डिटरमाइन करना है. तो यहाँ से मुझे 3x माइनस 2 इज इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे तो 2x प्लस 4 प्लस का b. अब कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयरिंग. तो यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 2a है. ये तो वैसे ही हो गया ना, a इज इक्वल टू 3/2. अभी तो किया था हमने. कांस्टेंट यहाँ पे डिफर है -2, यहाँ कांस्टेंट है 4a और प्लस का b. तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 4a -2 माइनस 4 3/2. तो 2 से 2 कटेगा, तो ये -8 आ जाएगा. वहाँ -5 था, यहाँ -8 आ गया, करेक्ट है. बस और कुछ नहीं. ओके, देयरफॉर अब फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये यहाँ से आते हैं, करेक्ट. तो ये है 3x माइनस का 2, a का वैल्यू आ गया 3/2, करेक्ट. ये हो जाएगा 2x प्लस 4 और b का वैल्यू आ गया -8. क्लियर. अभी हमको इसको डिवाइड कर देना इससे. सो देयरफॉर 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस का 3 इज 3/2. 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3 -8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 3. ये हो गया. अब इसी को तो आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट इसी को करना है. ये इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, और ये सारे के सारे इंटीग्रेशन. ये वाला इंटीग्रेशन मेरे को फाइंड आउट करना है. ये इंटीग्रेशन नोन हो गया. नोन कैसे हो गया, देखो, दैट इज इक्वल टू 3/2 सिंपली लॉग ऑफ, इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, करेक्ट है. तो हमने कौन सा ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया, f'(x) f(x) dx दैट इज इक्वल टू लॉग ऑफ f(x) होता है, करेक्ट. ये वाले कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर लेना है, सही. ये हो जाएगा
यहाँ तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल गया, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यहाँ +4 होना चाहिए, -4 करेंगे तो -1 आएगा। करेक्ट है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3 माइनस का 8 dx अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको ये पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन में फार्मूले आपको मालूम होना चाहिए। तो ये होता है 1/2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये वाला फार्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। करेक्ट, ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 8 1/2a, लॉग में 1/2a भी होता है, 1/2a मतलब 1/2 इंटू 1 यही होगा। ठीक है, फिर लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एक्स प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस 1 ये बनेगा। ये हो जाएगा 3/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस का 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एंड ऑफकोर्स प्लस का c, ये आपका आंसर है। करेक्ट है, ओके। तो इस प्रकार से हमने ये वाली पर्टिकुलर वेराइटी को भी देख लिया। इस पर्टिकुलर वेराइटी में क्या होता है, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक या लीनियर बाई क्वाड्रेटिक अंडर स्क्वायर रूट साइन, देन वी हैव टू मेक द सब्स्टिट्यूशन दैट लीनियर इज इक्वल टू a into derivative of that quadratic plus का b, that a and b we can determine by comparison and then we can solve the integration. These integration now will be converted into the known integration which we have already learned in previous classes. Got it?